Good morning everyone. Today we are going to discuss the next chapter, that is how do organisms reproduce. Okay. So in this chapter what we have to read? Our first topic in this chapter is how do organisms create exact copy of themselves. So in this chapter we find the answer of this. The importance of the variation. So we find what is variation. The mode of reproduction. Our next topic is mode of reproduction by single organism. Mode of reproduction by single organism. It means that asexual mode of reproduction. How many types of these? That is fission. Fission are found in amoeba. Okay, amoeba and leishmania. Fission. And fragmentation is found in Spirogyra, and regeneration are found in Hydra and Planaria, and budding is also found in Hydra. Budding is also found, and vegetative propagation is the feature of asexual reproduction in plants actually. Okay, and spore formation is found in Rhizopus. This is also asexual mode of reproduction. And after that, our next topic is the sexual reproduction. Sexual reproduction in plant, sexual reproduction in human being, and the male reproductive part and female reproductive part, and the reproductive health. When we read the reproductive health, then our topic is closed. Okay. तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कॉपी बना सकता है. तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही होता है. जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी प्रोजेनी बनाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं बनती, चाहे वो प्लांट के केस में हो, चाहे वो एनिमल के केस में हो. कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी देखते हैं. इन योर 9th क्लास you read about cell. When we see the structure of cell, there is nucleus. Nucleus are found, and in nucleus there is chromosomes are found. Chromosomes, and in chromosomes there is DNA. Genes are DNA. Okay. So we read about cell. What is cell? And in the cell there is nucleus are found, and in the nucleus there is chromosomes, and in chromosomes there is DNA and genes are present. These DNA and genes are responsible for inheritance of characters. Okay, responsible for inheritance of character. इसका मतलब कि जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने के लिए. ओके. सो देखिए होता क्या है. द डीएनए रेप्लिकेट एंड मेक देयर ओन कॉपी. देयर इज टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यू नो, दैट इज माइटोटिक एंड मेयोटिक. टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोटिक एंड meiotic. In mitotic cell division there is, यहाँ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है. There is कैरियोकाइनेसिस
It means there is division in nucleus. Division in nucleus. Division in nucleus. And here only somatic cells are divided. Somatic cells are divided. So when we talk about mitotic division, उल्टा हो गया ये. माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या होता है, सोमेटिक सेल डिवाइड होती है, सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है, और मियोटिक सेल के अंदर ऐसे कर दीजिए, और मियोटिक सेल के माइटोटिक के अंदर क्या होता है, सोमेटिक, और मियोटिक के अंदर क्या होता है, डिवीजन इन न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस इन मियोटिक डिवीजन. तो मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, देयर इज क्रोमोसोम्स हैव, there is gamete and type, and there is another gamete, this is also and type. You know that what is gamete? That is when we talk in human, in human there is gamete, that is male gamete, that is sperm, and female gamete, that is ovum. Okay, ova or egg. Okay, so that is sperm and that is egg. Egg gamete. When they are fused, okay, when they are united, fused, then they form zygote. That is two-end structure. They form zygote. That is two-end structure. And this zygote can divide, multiple division take place in this, and they form a body. Okay, they form a body. Okay, so here two-end structure are formed. In zygote there is two-end structure. Okay. एंड जाइगोट में क्या होता है, फिर आपका मियोटिक डिवीजन होता है. मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होती है, एक सेल से चार सेल बनती है. एक सेल से चार सेल बनती है, और वो चारों सेल जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है. हैप्लॉइड यानी कि वन एन स्ट्रक्चर होता है, उसमें टू एन स्ट्रक्चर नहीं होता, वन एन स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका मियोटिक डिवीजन होगा. मियोटिक डिवीजन, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन के बाद से आपका क्या होगा, आपका जो बॉडी बनेगी वो आपका वन एन स्ट्रक्चर होगी. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डीएनए क्या होता है आपका, रेप्लिकेट करता है. डीएनए कैन मेक देयर ओन कॉपी, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद जो डीएनए होता है फिर आपका प्रोटीन के लिए कोड करता है, और उसके बाद से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही आपकी बॉडी होती है. हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी होती है. तो डीएनए किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए, रेप्लिकेट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, और फिर वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करती है, आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर आपकी बॉडी के अंदर बनाती है. जैसे हमारे आई कलर के लिए स्पेसिफिक डीएनए होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा. एक डीएनए, एक जीन और एक प्रोटीन. ठीक है, तो जीन जो होता है जो कि आपका डीएनए पे होता है, वो आपका कंप्लीट डीएनए हो सकता है या सेगमेंट ऑफ डीएनए हो सकता है. जीन इज द कंप्लीट डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. You see that you can see that human body there is different color, eye color. Some have black eye color, some have brownish eye color. This is because that different type of DNA. Okay, तो कुछ डीएनए जो होते हैं वो ब्राउन आई के लिए कोड करते हैं, तो ब्राउन आई वाली प्रोटीन बनाते हैं. डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन ही क्या बनाता है, पूरी बॉडी को बनाता है. तो जो डीएनए के रेप्लिकेशन का क्रम होता है, जो एक डीएनए, जैसे एक आपका कुछ डीएनए आया, अगर हम ऐसे समझे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, या फिर जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है. ठीक है, तो जब हम मेल की बात करते हैं, मेल की, और जब हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल से वन एन स्ट्रक्चर आता है, और मेल से भी आपका एन स्ट्रक्चर आता है. दोनों यूज करते हैं, टू एन बनता है. ठीक है, यानी यहाँ पे 50% कैरेक्टर किससे आ गए, मेल से, 50% कैरेक्टर किससे आ गए, फीमेल से. 50% कैरेक्टर फ्रॉम मेल एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल. दे हैव 100%. They have 100%. 50% from male and 50% of female. Male have different
DNA structure. Male have different DNA structure and female have also different DNA structure. They unite, okay, and they form different DNA structure. Okay, so मेल से एक कैरेक्टर आया, फीमेल से एक कैरेक्टर आया और फिर दोनों जाइगोट बने, जाइगोट के बाद फिर डिवीजन हुआ, फिर एक बॉडी बनी, तो वो आपकी डिफरेंट स्ट्रक्चर की बनेगी, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉपी एग्जैक्ट नहीं होती है। डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर होता है। तो आपका एग्जैक्ट कॉपी, माता पिता से जो पेरेंट्स बनते हैं वो एकदम उनकी कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसी वजह से, क्योंकि ये आपका डीएनए के स्तर पे होता है। डीएनए क्या क्या बनाता है आपका, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन बनाता है। हर आपका जो जितने भी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे वॉइस क्वालिटी आपकी, ठीक है, वॉइस क्वालिटी, आपके स्किन का कलर, ठीक है, हेयर का कलर, आंखों का कलर, ठीक है, आपके मतलब हर चीज एक डेफिनेट डीएनए उसको कोड करता है। ब्लैक कलर के लिए कुछ और डीएनए होगा, ब्राउन कलर के लिए कुछ और डीएनए होगा आपका। तो ये सारे, और ये क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी हेयर्स क्या है, प्रोटीन है, आपकी बॉडी की स्किन क्या है, प्रोटीन है। तो डीएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, जो इस वजह से जो आपकी कॉपी बनती है वो आपकी एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं बन पाती है। ओके, सो होप यू फाइंड द आंसर। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? दैट इज नो। Our next topic is importance of variation. If you find any doubt in this section, then you can ask. I hope that you understand all these things. So our next topic is importance of variation. Importance of variation. So first of all, we have to know that what is variation. What is the topic? Importance of variation. Importance of variation. So first of all, we have to know that what is variation. Variation means the difference in species to species. The difference in species. जो भी अंतर होता है ना, वो वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। स्पीसीज के अंदर, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के अंदर जो अंतर होता है वो वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। जैसे ह्यूमंस, एक ह्यूमन बॉडी और दूसरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अंतर होगा वो आपका क्या बताएगा, वेरिएशन को। सो वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन। वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से ही आपका वेरिएशन क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट की वजह से। एंड वेरिएशन इज डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज और इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट देयर genetic structure also. Okay, so this is not a topic of discussion. So the importance of variation is what, so we know that what is the variation and why variation is important, because they enrich the diversity, because variation can enrich the diversity. जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। अगर आप किसी भी, जैसे बर्ड की बहुत ज्यादा स्पीसीज देखते हैं तो इट मीन्स दैट बर्ड हैव मेनी डाइवर्सिटी, बर्ड हैव डाइवर्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड आर फाउंड। मतलब वेराइटी ऑफ द बर्ड कैन शो द डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ द बर्ड शो देयर डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? दे इंक्रीज डाइवर्सिटी, they increase diversity. Okay, today our next topic is the mode of reproduction by single organism. So what we read in this section, let's see. Do organism create, the chapter name is how do organism reproduce. How do organism reproduce मतलब कोई भी organism कैसे reproduce करता है, कैसे अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है। reproduction is necessary for reproduction is necessary. Why reproduction is necessary? One question in this book.
there are asked one question that why reproduction is necessary, because when we see the life processes, there is reproduction is not necessary to survive life. Okay, reproduction is not necessary to survive life. So why reproduction is importance or why it is necessary? क्योंकि लाइफ को सर्वाइव करने के जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, उसमें रिप्रोडक्शन आपका इम्पोर्टेंट नहीं था. किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होता है. तो क्यों रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी. अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन ना हो, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी बर्ड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी कॉपी ही ना बनाए, चाहे एग्जैक्ट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन अगर कॉपी ही ना बनाए तो क्या होगा? फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं. तो इस वजह से पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की वजह से डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, अर्थ को और सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो नेसेसरी होता है. होप यू अंडरस्टैंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. And what we need about do organism can create their own copy of themselves? No, we find the answer. And the mode of what the importance of variation, that is the enrich in diversity. And what is our next topic is the mode of reproduction used by single organism. Mode of reproduction used by single organism. It means that एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करता है तो कौन कौन से तरीके होते हैं उसके अंदर. जहां दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो आपका अलग हो गया. जहां सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपनी एक कॉपी बना सकता है, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज एसेक्सुअल mode of reproduction. There is single organism. Single organism. It means there are no need to two organisms to reproduce another body. Okay, reproduce and create their progeny. Reproduce and generate their progeny. They don't need to another body. Single organism are responsible for their generation. Okay. So what is the mode of reproduction? First stage fission. कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो पहला है आपका फिशन. When we talk about the mode of reproduction in fission, that is, it is found in amoeba and Leishmania. Amoeba and Leishmania. You can understand this with the figure, with the diagram. This is amoeba, unicellular organism. Okay. जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो होता क्या है, धीरे धीरे इनका जो एक न्यूक्लियस होता है वही आपका थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है. देयर न्यूक्लियस बिकम इनलार्ज. ओके, एंड देयर बॉडी फिर क्या होगा,
तरह का, यहाँ भी न्यूक्लियस, ओके। अगला क्या होगा आपका, दो बॉडी हो गई। तो अमीबा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिशन, बाइनरी फिशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डिवाइड करना, धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू होता है। मतलब अब उसके शेप में, उसकी संरचना में थोड़ा परिवर्तन होता है। दे चेंज देयर शेप लाइक दैट, ओके। एंड आफ्टर दैट दे ब्रेक इनटू पार्ट, दे ब्रेक, द न्यूक्लियस break in two parts and each part create their own body, okay. The cytoplasm will also divide here. First of all cytoplasm divide, then nucleus divide, and then they make their own body. This is called binary fission and this is found in amoeba, okay. There is no any definite shape. यहाँ कोई भी इतना डेफिनेट शेप नहीं होता है, किस एंगल से डिवाइड होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं से भी आपके डिवाइड कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अमीबा जो होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है और अमीबा यूनिसेलुलर होता है, और ये कहीं से भी डिवाइड करके फिर आपका दो बॉडी बना लेता है। इसी को कहते हैं फिशन, और ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। और इसमें क्या है आपका, एक सेल से दो सेल बनती है, और ये आपका बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। Let's see the another example, that is Lismania. It's a field. We try to understand this. This is the structure of Lismania. Paramecium like structure. This is Lismania, okay. Their body divide transversely, okay, transversely. Lismania body divide transversely and make two body, okay. This is flagella. Flagella. You know what is the function of the flagella? This is responsible for locomotion. होता क्या है इसके अंदर? What happened when they reproduce? Here also nucleus enlarged in their size and then dividing two sections. Dividing two sections. This is also a fission, that is binary fission in Lismania. So hope you understand what is binary fission and how animals divide by binary fission and make their form. Okay. So one cell can divide in two parts in binary fission. One cell can divide in two parts in binary fission. What is the example? That is amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium. So this is all about fission.
You read the book, and if you find any problem in this section that is about fission, asexual mode of reproduction, then you can ask in our live class discussion. Okay, so in our next class we read about what is fermentation, what is fragmentation, and regeneration and budding. 3 sections we read in our next class. Thanks. Thank you.